Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Is there something special today? Guess it? Yes, it's the last lecture of this third play, The Oyster and the Pearl by William Sorrell. I repeat the writer's name in every lecture because it's very important. It can become a question in your objective paper as MCQ, multiple choice question. So do remember the names of playwright, dramatist, name of poet and name of short story writer. Let's start with the dialogue of the writer. About $300 कैसे रहेंगे? You remember the end of the last lecture? The writer was ready to buy the oyster, and he had asked Clay's demand, but Clay had become speechless. वो बिल्कुल उससे कोई बात नहीं बन रही थी, तो उसने कहा था कि he doesn't know the price. उससे प्राइस की कीमत का नहीं पता. तो राइटर खुद से सजेस्ट कर देता है, क्योंकि वो वॉज़े की बात सुन चुका होता है कि एक बड़ा पर्ल हो तो कोई मैक्सिमम $300 का हो सकता है. तो राइटर ने वही ऑफर कर दी है. अबाउट 300. ग्रिलिंग $300. सो ही इज स्टन्ड. हक्का बक्का रह जाता है, हैरान. क्ले, इज इट all right, Mr. Van Dawson. So he seeks Mr. Van Dawson's opinion because Harry is his mentor. Harry जो है उसका मुर्शिद है, वो उसी को फॉलो करता है. तो उसने उससे पूछा है क्या प्राइस ठीक रहेगी? Is it all right? Is it reasonable? Appropriate? Harry. He looks at the writer who nods, shakes head vertically or up and down direction. जैसे सर को होता है ना ऊपर नीचे हिलाना, ये पॉजिटिव जेस्चर होता है. he looks at the writer and he shakes his head in affirmation positively. हाँ में सर हिलाता है, उसको जेस्चर करता है ठीक है डन कर दो. sure, it's all right, it's okay. The writer hands Clay the money. Hands verb बना है यहाँ पे, gives. What a great decision by Harry. What a great sacrifice. Clay, looking at the money and then at the writer. But suppose there ain't a pearl in it. How innocent he is. कितना मासूम है, बड़ा straight forward है. कहता है फर्ज करें इसमें पर्ल ना हुआ तो. कन्विक्शन तो उसका स्ट्रांग था, लेकिन उसको भी फील तो हो रहा है ना कि कुछ चांस तो हो सकता है कि उसमें ना हो. द राइटर, देयर इज डाउट. एनीहाउ देयर इज. वाज इट? डू यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट? क्या आप चाहेंगे कि इससे पहले ओपन किया जाए? राइटर से पूछता है. एक्चुअली वाजिक इज एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर. वो एक आम सी ज़हनी सतह वाला कैरेक्टर है. वो इस डीप डिसीजन को, इस सेक्रीफाइस को नहीं समझ सकता. द राइटर, नो, आई वॉन्ट द होल ऑयस्टर. आई डोंट थिंक द पर्ल स्टॉप ग्रोइंग. मैं नहीं चाहता पर्ल की ग्रोथ रुक जाए. हाँ, एक्चुअली ही नोज दैट देयर इज नो पर्ल एट ऑल, बट ही प्रिटेंड्स दैट देयर इज अ पर्ल एंड इट इज ग्रोइंग. Clay, he says there's a pearl in the oyster, Mr. Van Dawson. So he repeats his doubt. Harry, I think there is. THERE. There is too also. मेरा भी ख्याल है इसमें है. तो he favors the writer and Harry also pretends that there is the pearl. Clay, so why don't you
So why don't you just go on home and give the money to your mother? Maybe यहाँ हैरी थोड़ा हार्श भी हो गया हो, because he knows that Miss McCutcheon's or anybody else arrival can make the situation worse. तो इससे सूरत हाल बदतर हो सकती है, ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो वो नहीं चाहता कि डिले हो, और वो कहता है क्यों नहीं तुम घर जाके रकम माँ को दे देते. Clay, well, I knew I was going to find something good today. मुझे यकीन था आज मैं कुछ अच्छा ही तलाश करने जा रहा हूँ. So he believes that he has searched the oyster with a pearl, and credit goes to the writer that he strengthened his belief. उसने उसके belief को मजबूत किया. The children go out. Wozzeck is bewildered, confused, baffled. तो वो हैरान है, क्या हो क्या गया. Wozzeck, $300. How do you know there's a pearl in it? तो कैसे जानते हैं कि इसमें पर्ल है. The writer, as far as I'm concerned, the whole thing's a pearl. Concerned, related, जहाँ तक मेरे मुतालिक बात है तो मेरे लिए ये पूरी चीज़ ही पर्ल है. The whole oyster is a pearl. The whole matter is as precious as a pearl. Because he felt great satisfaction and pleasure in sacrifice for a needy family. तो एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए जो कुर्बानी है वही उसके लिए मोस्ट प्रेशियस एसेट है, सबसे कीमती सरमाया है. और ये इस तरह की जो सेक्रीफाइस करना जानता हो तो उससे वो टेस्ट कर सकता है कि इस सेक्रीफाइस का कितना मज़ा होता है. Wozzeck, a little confused, a little bit baffled. Well, I got to get back to the shop. हैरी तो वो अपनी हैरत में खोया हुआ है, और ऑर्डिनरी सा माइंड है, वो इतनी हाई प्रोफाइल बात को नहीं समझ पाता. कहते अच्छा फिर मुझे दुकान पे जाना है. हैरी, थैंक्स फॉर कमिंग बाय, थैंक्स फॉर द विजिट. Wozzeck goes out. The writer holds the oyster in front of him as if it were an egg and looks at it carefully, turning it in his fingers. Holds the oyster in front of him as if it were an egg. So, isn't it strange कि it के साथ were use हुआ है. तो रीज़न क्या है? As if. ये correct use of verb में भी आएगा. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो यहीं से प्रिपेयर कर लें. एज इफ के बाद जो सिचुएशन होती है वो रियल नहीं होती, वो सपोजिशन होती है, इमेजिनेशन होती है, ख्याली बात होती है. तो इसलिए वर ही आता है या हैड बीन आता है, इन दो में से एक आता है. एज इफ इट वर एन एग, जैसे वो एक अंडा हो. अच्छा वो अंडा तो नहीं था ना, वो तो ऑयस्टर थी. ख्याल किया जा रहा है, इसलिए एज इफ के बाद क्या है, वर आया है. जैसे सपोज हम कहें ना भाई आज वेंसडे है, ठीक है, तो हम कहें भाई ऐसा लगता है आज थर्सडे हो, तो हम क्या कहेंगे, इट फील्स एज इफ इट वर थर्सडे, हालांकि सपोज है बुध. एंड लुक्स एट इट केयरफुली, कॉशियसली, डीपली, माइन्यूटली, टर्निंग इट, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोटेटिंग इन हिज फिंगर्स. अपनी उंगलियों में उसे घुमाते हुए गौर से देखता है. As he is doing so, Clark Larrabee comes into the shop. Oh my goodness! What a great development in the play. क्या जबरदस्त ट्विस्ट आया है प्ले में कि जो ही वो ऐसा करता है तो क्लार्क लारबी शॉप में आ जाता है. तो जी क्लार्क साहब तो गए थे सेलनेस वापस, और वो जो मनी लाए थे वो तो हैरी को देकर गए थे. कितनी अमाउंट थी? $30. तो ये साहब लौट आए हैं. ही इज होल्डिंग द कॉपी ऑफ द न्यूज पेपर
that Harry gave him. Well done. So the newspaper turned the tables. तो उस अखबार ने काया ही पलट दी, सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया. एंड क्रेडिट गोज टू हैरी ऑल्सो. तो क्ले को भी जाता है कि उन्होंने ऐड दिया था, तो वो ऐड उसने पढ़ा होगा एंड ही विल हैव मूव्ड. तो उसमें उसके बड़े जज्बात उभरे होंगे. तो गुड साइन, ही हैज रिटर्न. देख रहे हैं प्ले जो है वो एंटी क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है. द थिंग्स आर गोइंग ऑन सोल्यूशन. तो मामलात जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, सोल्यूशन की जानिब जा रहे हैं. क्ले को रकम मिल गई और क्लार्क जो हैं वो वापस आ गए हैं. क्लार्क, We were 10 miles up the highway when I happened to see this classified ad in the paper. Highway, main road, classified ad, brief ad, short ad. वो न्यूज़पेपर होता है ना, तो उसके अंदर किसी एक पेज पे, पूरे पेज पे या हाफ पेज पे या कुछ स्पेस पे कॉलम में, सीक्वेंस में छोटे छोटे ऐड होते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्लासिफाइड ऐड. तो कहते हैं हम उधर मेन रोड पे कुछ 10 मील आगे गए थे जब मैंने इत्तेफाक से इस न्यूज़पेपर में वो शॉर्ट सा ऐड देखा. आप अच्छी तरह जानते हैं वो ऐड क्या था. He hands the paper to Harry and sits down in the chair. I am going out to the house. After all, at last, I am going to the house. Well done. Just for the weekend, of course. Then back to work in Salness again. Another good gesture, positive gesture. कहता है सिर्फ वीकेंड के लिए आया हूँ, फिर वापस जाऊंगा सैलनेस. 2 or 3 months वहीं सर्व करूंगा. आई थिंक आई हैव इनफ टू कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो फिर मेरे ख्याल में मेरे पास इतनी रकम होगी, काफ़ी रकम होगी कि मैं ज़रा लॉन्ग टाइम के लिए इधर गांव आऊँगा. सो इट्स अ वेरी गुड साइन. देयर इज रे ऑफ फाइनेंशियल बेटरमेंट. क्ले केम बाय. Oh my God, great paternal feelings, fatherly feelings. तो वो कहता है क्ले मिला तुम्हें. कम बाय, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. पार्ट 2 में ये आपको डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, IT स्पेशलिस्ट, कॉमर्स की फील्ड में ये आपको बहुत बूम दे सकते हैं. तो मार्क्स मिलेंगे इसके. लैंग्वेज पॉलिश होती है जब आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं, इडियम्स यूज़ करते हैं. जैसे अभी मैंने एक इडियम यूज़ किया था, टू टर्न द टेबल्स, सूरत हाल को एकदम बदल देना. इस तरह फ्रेजल वर्ब है. कम बाय, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ हो तो वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है. कम बाय होता है टू गेट समथिंग बाय चांस, लेकिन यहाँ मतलब होगा मीट. पास्ट है केम, तो मेट. केम अक्रॉस, एक और आ गया फ्रेजल वर्ब, केम अक्रॉस. क्या क्ले से मुलाकात हुई? अंदर है ना, फीलिंग्स हैं, तो पैशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं. ही इज बैडली मिसिंग हिज सन हैरी. नो, आई गॉट द मनी हियर. क्लार्क, ओके, आई टेक इट आउट माई सेल्फ. इज इट अ गुड साइन? यस, मच बेटर sign, because he himself will take the money to the house. But first let me have the works: shave, haircut, shampoo, massage. Very good. So he is in mood of merry making. बड़े खुश है जी, बड़े याशियाँ हो रही हैं और and he deserves it. उसका हकदार भी है, because he is going to join his family after rupture, RUPTURE, rupture. वो ब्रेकेज आ गया था रिलेशन में, बड़ा टेंशन थी. तो अब वो वापस घर जा रहा है, तो he wants to have good appearance. क्या कहते हैं जी, शेव हो कर दे उसकी, हेयर कट, शैम्पू और मसाज, मालिश कर दे उसके जिस्म की, सर की. Harry, putting on
putting an apron on Clark. Apron, piece of cloth. Sure thing, certainly, Clark. He bends the chair back. ये जो लोग बार्बर शॉप विजिट करते रहते हैं दे कैन अंडरस्टैंड इट. ये पोस्चर होता है कि बेंड्स द चेयर बैक, तो ज़रा इजी पोस्चर में पोजीशन में चेयर चली जाती है तो वो थोड़ा सा जो क्लाइंट होता है वो टेक लगा के बैठ जाता है पीछे की जानिब. एंड बिगिंस टू लेदर क्लार्क्स फेस. तो वो जो क्लाइंट होता है उसका फेस थोड़ा सा बार्बर के कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है. तो he begins to leather Clark's face. Leather, apply shaving cream. तो गांव की एक आउटडेटेड सी शॉप है तो मे बी वो उसने जस्ट सोप अप्लाई किया हो और द सेक ऑफ फोम झाग की खातिर तो वो उसको उसके फेस को लेदर करता है. मिस मैकॉचियन ड्रेस्ड नीटली लुकिंग लाइक अनदर पर्सन ऑलमोस्ट कम्स इन. अनदर ग्रेट डेवलपमेंट, मेजर कैरेक्टर है मिस मैकॉचियन तो उसकी अपीयरेंस तो होना लाजमी थी. ड्रेस्ड नीटली, क्लैड, CLAD, क्लैड नीटली, अटायर्ड, ATTIRED, अटायर्ड नीटली, लुकिंग लाइक अनदर पर्सन ऑलमोस्ट कम्स इन. ये क्या भाई कि साफ शफाफ लिबास है ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या भाई कि वो तकरीबन एक बिल्कुल नए शख्स की तरह, मुख्तलिफ शख्स की तरह और लड़की की तरह नजर आती है. वाई? कैन यू गेस इट? यस, शी हैज चेंज्ड हर अपीयरेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड मॉडिश लुक. वो जो उसकी मॉडिश लुक थी ना उससे अवॉइड करने के लिए उसने अपने अपीयरेंस चेंज कर ली है. तो इट मीन्स शी हैज sacrificed her fashion. She has sacrificed her appearance. Miss McCutcheon. Well, Harry, you look fine, Miss McCutcheon. तुम ठीक लग रही हो. असल में तो वो उसको अवॉइड करना चाह रहा है इसलिए उसने उसको फौरन से ही कह दिया भाई ठीक लग रही हो मिस मैकॉचियन. I don't mean that. I mean the oyster. She is still thinking about the oyster. तो असल में शी इज ओवर रीचर. ओवर रीचर स्टूडेंट कौन होता है? हद से बढ़ जाने वाला, हद से बढ़ जाने वाला. Who splits the hair, जो बाल की खाल उतारे ना, इस तरह की कोई नेचर की है, ओवर रीचर है. हैरी, oh that, अच्छा वो, there was a pearl in it. Miss McCutcheon, I don't believe it. A big pearl. Miss McCutcheon, you might have done me the courtesy of waiting until I had come back before opening it. Courtesy, favor. आप इतनी तो मेरे साथ मेहरबानी करते कि उसको खोलने से पहले मेरा तो वेट कर लेते. तो वो समझती है कि उन्होंने उसको ओपन किया था. हैरी, couldn't wait. Miss McCutcheon, well, I don't believe you, but I come for my haircut. I'll sit down and wait my turn. Turn, बारीक, जैसे हम यहाँ पे नंबर का वर्ड यूज करते हैं. Harry, Mr. Larrabee wants the works. You'll have to wait a long time. क्यों कहते हैं भी काफी देर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा? Because he avoids her. Miss McCutcheon, Mr. Larrabee, Clay's father, Roxana's father. Clark sits up. He gets alert. He erects. Sits up, erects. तो सीधा होके बैठ जाता है. पहले तो उसने बैंड किया हुआ था बैकवर्ड, तो बैकवर्ड्स पीछे की जाने पहले तो उसने बैंड किया हुआ था, अब वो सीधा बैठ जाता है. ही गेट्स अलर्ट, वो चौंक जाता है. भाई इसे मेरा नाम का पता है. हैरी, क्लार्क, आई लाइक यू टू मीट आवर न्यू टीचर मिस मैकॉचियन. क्लार्क, हाउ डू यू डू? मिस मैकॉचियन, हाउ डू यू डू मिस्टर लाराबी? He looks bewildered, confused, baffled.
Well, perhaps some other time then, Mr. Windowson. Oh, very wise decision by Miss McCorche. Very sensible move. तो वो कहती है मैं फिर किसी वक्त आऊंगी. She goes out. Clark sits back. Moves towards his previous position. Bends back. Judge Applegaard stops at the doorway of the shop. तो वो अभी डोरवे थ्रैशोल्ड दहलीज, तो वो शॉप की दहलीज पे रुकता है. द जज. नॉट वन थिंग ऑन द बीच हैरी. हैरी बीच जो है ना, कोस्ट सी साइड साहिल समुंदर, इस पे कोई एक चीज भी ढंग की नहीं है, एक चीज भी काम की नहीं है. Not a blessed thing worth picking up and taking home. Blessed वैसे तो हम लिटरली तो इसको कहेंगे bounteous, 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 लेकिन यहाँ मतलब हम कह सकते हैं यूजफुल. वर्थ पिकिंग, उठाने के काबिल, एंड टेकिंग होम. हैरी, इस साहिल समुंदर पे कोई एक भी चीज नहीं है, कोई इतने फायदेमंद के बंदा उठा के घर ले जाए. Look at the dollar. Has it worth? क्या इसकी वैल्यू है? Is it meaningful? Purposeful? Of course. Actually, William Sarwan draws a contrast between the reality and the situation. तो वो एक कंट्रास्ट ड्रॉ करता है. फैक्ट ये है, रियलिटी ये है कि देयर इज नथिंग वर्थ पिकिंग, उठाने के काबिल कोई चीज भी नहीं है. और उधर राइटर ने उसके लिए बड़ी हैवी अमाउंट पे की है, $300. Judge Applegaard goes on, continues. The writer looks at Harry. So the writer gets alert. उसकी बात सुन के जरा चौंक सा जाता है, तो वो हैरी को देखता है. हैरी, see what I mean. देखो क्या मेरा मतलब क्या है. मतलब मैंने तो कहा था ना कि इसमें नहीं होगा, पर नहीं होगा. The writer, yeah, well, so long, too long. He says he is getting too late. अब उसे बहुत देर हो रही है, इधर काफी देर ठहर गया. He puts the oyster in his coat pocket. oyster अपने कोट पॉकेट में रख लेता है, शायद इसलिए कि वो एक लाइफ टाइम टोकन रहेगा, जिंदगी भर एक निशानी रहेगी कि उसने किसी की हेल्प की थी. अदरवाइज उसका कोई और पर्पस नहीं है, यूजेज नहीं है oyster. हैरी, drop in again anytime you are driving to Hollywood. Drop in, stop, pay a visit, do visit again anytime you are driving to Hollywood. अगर फिर कभी हॉलीवुड जाएं तो इधर जरूर आइएगा, ठहरिएगा. The writer, or away, he goes out. Away, far, FAR, far. Away, far, distant, या इससे भी आगे. अच्छा स्टूडेंट, ये जो उसका डायलॉग है ना, और अवे, ये मुझे बड़ा अपील करता है. और टू मी इट सीम्स दैट ही प्रोमिसेस दैट ही विल गो अहेड रिगार्डिंग एनी सेक्रीफाइस इन फ्यूचर. के मुस्तकबिल में कोई कुर्बानी हुई तो वो इससे भी ज्यादा कुर्बान करने के लिए तैयार होगा. लिटरली तो यही है ना कि हॉलीवुड से भी आगे कभी इस तरफ जाऊंगा तो इधर आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा. लेकिन जो राइटर्स होते हैं वो बड़े कम वर्ड्स में बड़ी डीप बातें करते होते हैं. तो असल में मैसेज ये आ रहा है कि वो इससे भी ज्यादा किसी की मदद के लिए तैयार होगा.
Clark. After a moment, after an instant, एक लम्हे बाद, sorry, you know, Harry, that boy of mine, Clay, well, a fellow like that, you can't just go off and leave him. तो हैरी जानते हो, ये जो मेरा लड़का है, दैट बॉय ऑफ माइन, इसकी सड़की बड़ी मजेदार बनेगी, खुद कर ले. क्ले, वेल अ फेलो लाइक दैट, इस तरह का जो पर्सन होता है, लड़का होता है, यू कांट जस्ट गो ऑफ, लीव द हाउस एंड लीव हिम, और उसे अकेला छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता. इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़के को आप छोड़ के नहीं जा सकते. वो फिर इम्प्रेस हुआ है ना अपने बच्चे की टैलेंट से, क्योंकि उसी के एड से वो रिटर्न हुआ है. हैरी, ऑफ कोर्स यू कांट क्लार्क, सर्टेनली क्लार्क, आई एम टेकिंग हिम फिशिंग टुमारो मॉर्निंग. हाउ अबाउट गोइंग अलोंग, हैरी? डू यू नोटिस समथिंग? इज देयर एनी पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव मूव? ऑफ कोर्स ही विल टेक हिज सन टू फिशिंग टुमारो. So the life has revived. जिंदगी जो है वो लौट आई, और हैरी को भी वो ऑफर करता है साथ जाने को. हैरी, श्योर क्लार्क, बी लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन, बी एज गुड एज यू वर. तो उसी तरह अच्छे हो जाओ जैसे पहले अच्छे थे. फॉरगेट द पास्ट, भूल जाओ माजी को. देयर इज अ पॉज, गैप, इंटरवल. वो क्लार्क ने थोड़ा सा फील किया होगा ना, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हुआ होगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, तो थोड़ा सा गैप आया. क्लार्क, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट एन ऑयस्टर एंड अ पर्ल? ये सब क्या बातें थी ऑयस्टर पर्ल की, वो जब मिस मैकॉचिन आई थी. हैरी, ओह, जस्ट हैविंग अ लिटिल फन विद द न्यू टीचर. फन, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, बस ये नई टीचर के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे. See at Harry's wisdom, he doesn't share the whole story with Clark, otherwise it might have hurt him. ये इससे तो वो हर्ट हो जाता, तो उसने उसको ये बातें शेयर ही नहीं की. तो लिटरेचर हमें टीच करता है, हमें अपनी लाइफ में सिखाता है कैसे किससे बात करनी है. You know, she came in here and asked me to give her a poodle haircut. तो लास्ट पे हम फिर हंस पड़े पूडल हेयर कट पे. इट्स अ फनी मैटर. तो देखे ना राइटर ने प्ले को कैसा वो सेंटिमेंटल से लास्ट पे फिर कैसा टाइप दिया है, कॉमिक टाइप दिया है, ह्यूमरस टाइप दिया है. तो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, परफेक्टली है. A poodle haircut, बढ़िया ही poodle haircut. I don't remember what a poodle dog looks like even. मुझे तो हत्ता के ये भी नहीं पता कि एक poodle dog कैसे दिखाई देते हैं, तो मैं poodle haircut कैसे दूंगा. Curtain, the curtain covers the screen. तो पर्दा गिरता है स्क्रीन पे, तो इट मीन्स योर प्ले इज ओवर. आई वॉन्ट योर जनरल कमेंट्स. थिंक अबाउट इट. हाउ इज द एंड? वॉट डू यू प्रेडिक्ट इन फ्यूचर? डेफिनेटली द प्ले एंड्स ऑन ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म, होप, and hope sustains the world. दुनिया उम्मीद से कायम है. When there is hope, we are alive. जब तक उम्मीद होती है हम जिंदा रहते हैं. The writer has sacrificed a handsome amount of money for the innocent requirements and joys of Clay. Harry played his positive role regarding solution of
Clay's issues, bringing Clark back, and Miss McCutcheon, what do you say about her? Will she stay in the town or go back to San Francisco? Definitely she will stay there. Why? Because she has sacrificed her likes. She has sacrificed her appearance. She has changed herself and she will remain there. After changing her get-up, she can adapt there. ADAPT. She can adapt herself there. ADAPT, adapt, के मुताबिक ढाल लेना, के मुताबिक ढाल लेना। तो वो अपने आप को ओके बाय द सी के मुताबिक अब ढालेगी। उसने अपनी मॉडेस्ट लुक को चेंज कर लिया है इनटू सिंपल एंड प्लेन लुक। And one thing very important, think about her stay at Occupy the Sea. Is it useful for the villagers? Of course, it is useful for the coming generations. When there is education, there is development and progress too. Now, the future generations will be educated, so education will ensure prosperity and success in the society. Thanks a lot. Allah Hafiz.